السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، میں آپ کو وہابی دیوبندیوں کی حقیقت سنواتا رہتا ہوں، دکھاتا رہتا ہوں، ان شیطانوں کی شیطانیت منظر عام پر لاتا رہتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور اہل حدث وہابڑا آیا، مجھے کال کیا، اس سے میری کچھ بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی۔ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ کتنا بڑا جاہل ہے، یہ کتنا بڑا شیطان ہے کہ اس نے چاروں اماموں کو بتایا کہ وہ جنتی نہیں ہیں۔ کیسے جنتی ہیں؟ مجھ سے اس نے پوچھا کہ تم انہیں کیا مانتے ہو؟ جنتی مانتے ہو؟ یہ جنتی ہیں کیا؟ میں نے کہا جی ہاں جنتی ہیں۔ خیر بہرحال آپ اس پوری آڈیو کو آپ ملاحظہ فرمائیے گا، اور جو میرے سنی بھائی اس چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے اس چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابی دیوبندی شیطانوں کی شیطانیت آپ حضرات کے سامنے میں لاتا رہوں، اور جب کوئی نیا ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے مسلمانوں، آپ حضرات کے لیے میں اتنی محنت کرتا ہوں تو آپ بھی جو ہے میرا ساتھ دیں، آپ بھی میری مدد کریں اس کام میں۔ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ اپنے دوسرے بھائیوں تک، اپنے دوسرے ساتھیوں تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میں ان وہابی دیوبندیوں کی اوریجنل حقیقت، ان کی جو اندرونی کیفیت ہے، آپ حضرات کے سامنے میں ظاہر کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ پوری آڈیو کو آپ باغور سنیے گا اور فیصلہ کیجیے گا۔ اس نے کیا کیا دعوے کیے، کیا کیا باتیں کہی، اور اس کو کتنا علم ہے، اس کی علمی صلاحیت کیا ہے، وہ آپ اس ویڈیو میں، اس آڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس چینل کو نئے حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جو بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے ہیں، وہ تمام ہی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور علماء سے میں درخواست کروں گا کہ وہ میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے جو ہے اگر میری کہیں کوئی غلطی ہو، وہاں میری اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ علماء بہتر جانتے ہیں، اور علماء کی محنت کے ذریعے سے ہی میں یہ کام کرتا ہوں الحمدللہ۔ بہت سارے علماء ہیں الحمدللہ جو اس گناہ گار کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اور کوئی بھی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ ان شیطانوں کے گھر سے ہی میں ان کی شیطانیت دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی بھی میں غلط حوالہ نہیں بولتا، کوئی بھی میں جھوٹ نہیں بولتا، جیسے وہابی دیوبندی جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، میں ایسا کوئی بھی ورڈ استعمال نہیں کرتا جو ان کی کتابوں میں نہ ہو۔ میں وہی بولتا ہوں جو ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہلو جی ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بول رہے ہیں؟ جس کے پاس آپ نے میسج کیا وہی بول رہا ہوں میں۔ ہاں یہ نمبر تھا، بتائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بھیا آپ اپنا نام بتا دیتے زیادہ بہتر۔ جی میرا نام نور حسن ہے اور میں سنی حنفی بریلوی ہوں۔ اچھا آپ بریلوی میں ہیں؟ ہاں اچھا الحمدللہ میں محمدی ہوں، اور میرا نام شاہد مدثر ہے۔ اچھا اچھا، شاہد مدثر۔ جی جی جی۔ اچھا، اہل حدیث ہیں؟ میں تھوڑا کال ریکارڈ پہ رکھ سکتا ہوں آپ کی؟ کوئی چوری کا کام میں نہیں کرتا۔ ہاں ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور میرے پاس تو آن ریکارڈ رہتا ہے۔ نہیں میں ریکارڈ میں بنا اجازت کے نہیں کرتا کسی کے۔ جی جی میرے پاس ریکارڈ رہتا ہی ہے۔ تو میں آپ اجازت دیں گے تو کروں گا، ہاں بالکل بالکل، آپ کال ریکارڈ کریں۔
ठीक है। हाँ शेख बोलिए। हाँ शेख, मैं ये कह रहा हूँ जी कि आपने क्या बोला कि आप अहले हदीस हैं? अहले हदीस मैं नहीं बोलता, लोग कहते हैं मुझे। अच्छा, लोग कहते हैं आपको? हाँ। अच्छा, किस इमाम की तकलीद करते हैं? मैं तो अल्लाह के नबी जो अल्लाह ने इमाम बना के भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अच्छा अच्छा, उनकी तकलीफ उनकी इत्तिबा करता हूँ मैं, और क्या। अच्छा अच्छा, यही मेरा मजहब है, यही मेरा दीन है, बस और क्या। फिर भी जैसे 4 इमाम हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनकी मैं इज्जत इमाम करता हूँ। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हैं। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, समझ गए। मैं इनकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ इनका। इन चारों इमामों में से किसी एक की तकलीद करते हैं या नहीं? नहीं, मैं तकलीफ क्यों करूंगा भाई, जब अल्लाह के नबी ने एक इमाम भेज दिया, अच्छा, अल्लाह के रसूल को, जो सारे अंबियाओं की इमाम है, जी जी, तो मैं इनकी क्यों करूंगा? अच्छा अच्छा, इनकी क्यों करेंगे? शेख सुनिए मेरी बात सुनिए शेख। हेलो, बोले शेख बोले। मामला ये मेरा मामला ये है ना, मैं इनकी, हाँ इनको ये मेरे नजर में इनकी बहुत बड़ी कद्र है, इज्जत है। अच्छा, और ये बड़े अल्लाह वाले थे अल्हम्दुलिल्लाह जी। चारों आइम्मा जो आप बता रहे हो जी, तो इनकी जो बात कुरान हदीस से मिलती है जी, वो बात मैं ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो बात कुरान हदीस से टकराना लेकिन हदीस को छोड़ दे। हाँ हेलो, अभी आ रही हूँ। हेलो, आ रही हूँ। हाँ, बाकी मैं तकलीद किसी की नहीं करता। अच्छा अच्छा, तकलीद किसी की नहीं करते, तो आप जरूर मुफ्ती या मौलवी या मुजतहिद होंगे जरूर। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एक जाहिल किस्म का आदमी हूँ। अच्छा अच्छा, इसीलिए आपने जिसको सही से उर्दू भी पढ़नी नहीं आती। जी 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 जी। तो फिर आप कुरान हदीस को कैसे समझेंगे जब आप अपने आप को एकदम डायरेक्टली? आप समझेंगे ना, आप समझाएंगे ना हमको, तो फिर मेरी तकलीद करोगे क्या? तकलीद होगी? अच्छा, तकलीद के माना क्या है? तकलीद की तारीफ क्या है? क्या माने है, क्या माने? आप नहीं जानना चाहूंगा। आप नहीं, ये आप तकलीद क्यों साबित कर रहे हो कि आपसे अगर मैं कुछ सीखूंगा तो ये तकलीद हो जाएगी? भाई तकलीद की वो हो जाएगी कि आपकी किसी आलिम का मतलब माना मुझे समझा दें आप पहले। हाँ, किसी आलिम दीन की बात, किसी जो है मुजतहिद की बात, जैसे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं, ठीक है, बहुत बड़े मुजतहिद हैं, इज्तिहाद करते हैं, ठीक है। अच्छा, छोड़िए, पहले सुन लीजिए ना। हाँ हाँ, जिन्होंने इज्तिहाद किया है, जो मुजतहिद हैं जी, उनके फिक्र पर अमल करना, उनके मसाइल पर अमल करना, है ना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, उनकी बात को फॉलो करना, यही तकलीद कहलाती है, ठीक है, बगैर चू चिरा के। अच्छा, ये तकलीद कहलाती है? हाँ, बगैर चू चिरा के तस्लीम कर। हाँ, तकलीद ये कहलाती है कि बिना उसका जब छानबीन किए हुए जो कह दिए इमाम साहब वो सब सही है, इसको कहते हैं तकलीद। एक मिनट, इसको कहते हैं अंधी तकलीद। मेरी बात सुनिए, इसको कहते हैं अंधी तकलीद। बड़बड़ाएंगे तो ऐसा नंगा करूंगा कि बाप दादा की नस्ल भी याद रखेगी। प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। प्यार मोहब्बत, जिस तरह मैं इस हालत में बात कर रहा हूँ, इसी हालत में बात करते रहे, बड़बड़ाएंगे। सुनिए, मेरे नबी ने तो गाली गलौज के लिए मना ही किया है। हाँ, वो आपके मसलक में होगा तो आप दे सकते हैं, मुश्किल नहीं है। मेरी बात को पहले सुने आप। नहीं, पहले आप गाली, अगर बड़बड़ाएंगे, बदतमीजी करेंगे तो तुम्हारी नस्ल तक याद रखेंगी कि हमारे बाप दादा को किसने जो है इस तरह से नंगा किया था। समझे? मेरी प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो अच्छा होगा, गाली पहले दीजिए, बेहतर होगा, आपके मजहब में होगा। मेरे अल्लाह के रसूल ने सिखाया नहीं कि गाली तो ये बता, मैंने तुझे गाली दूंगा, आप गाली दीजिए ना मुझे। मैंने बकी कब तुझे गाली? आप नंगा कर दे मुझे, चल। मैंने गाली बकी कब तुझे? नहीं, आपने कहा मैंने तुझे गाली बकी कब? अच्छा, मैंने तो आपसे बता, मैंने अगर तुझे गाली बकी। एक सेकंड, मैंने तो अभी तक तो आपसे बात की, तो मैं कह रहा हूँ पे आ गए, से बात कर, बड़बड़ा तू पे आ गया तो समझ लेना, तू समझा? नहीं, बड़बड़ाने वाले बहुत आते हैं, प्यार मोहब्बत से बात करो, इंसानियत के दायरे में रह के बात करो। जब मैं इंसानियत के दायरे में रह के अगर मजहब में गाली गलौज या तू तकार करना है तो चलिए कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, मैं नहीं बोल नहीं। जब मैं इंसानियत के दायरे में रह के बात कर रहा हूँ तो तुम्हें भी चाहिए कि इंसानियत के दायरे में रह के बात करो। चलिए, अब मेरी बात सुनिए, मेरी भी कुछ सुनिए। चल, अब मेरी भी कुछ सुनिए, फिर सुनिए, मेरे भी कुछ हवाला सुनिए। 4 अइम्मा की बात आप उठाए हैं। हाँ, 4 अइम्मा की बात उठाए हैं। हाँ, 4 अइम्मा गारंटी लेते हैं जन्नती हैं। पहले सबसे अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नती हैं, जन्नती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नती हैं।
अरे वो जने कितों को जन्नत में साथ लेके जाएंगे, वो जन्नती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको लेके जाएंगे? हाँ, कहाँ हो? इसको लेके जाएंगे? मैं भेड़े नीचे हूँ, यहाँ फरीद भाई की दुकान के पास, फरीद भाई की दुकान के पास हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर वो जन्नती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नती हैं। तो ये कैसे पता कि वो जन्नती नहीं मानता उन्हें? नहीं, मैं बिल्कुल जन्नती नहीं मानता, ना जहन्नमी मानता हूँ। अल्लाह के रसूल के वफात के बाद, उसके बाद मैं किसी को जन्नती या जहन्नमी नहीं जान सकता। अच्छा, कि वो है कि नहीं है। ठीक है, तू अपना काम कर, मैं ऐसे शैतानों से बात नहीं करता हूँ जैसा तू है, समझा? अच्छा, मेरी बात निकल ले, मेरी बात तो भाग, मेरी बात तो सुन ले। दारिया नहीं आ रही, कॉल कट। मेरी बात तो सुन ले। अरे भगवत मेरे भाई, मेरी बात सुन ले अब। अबे जाहिल, बुढ़े, सड़े हुए बदबूदार शैतान, तेरी इतनी उम्र आ गई और तेरे पास अकल का नाम और निशान नहीं है, और वहाबी देवबंदी बनता ही वो है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी आवाज थोड़ी सी मतलब अच्छा, मुझे ये पता लगा कि रास्ते में चल रहा हूँ। नहीं, जहनियत से आप पागल समझ में आ रहे हैं, जो अकल खो देता है, जिसका पास अकल नहीं है वही वहाबी देवबंदी बनता है। जहनियत से आप अबे शैतान के पुत्र, मैं साबित भी कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बता गुसल में कितनी सुन्नत है? चल बता, अभी मैं देखूंगा तेरा कितना बड़ा इल्म है। अच्छा बोल गुसल में कितनी सुन्नत है, बोल। अभी देखता हूँ तेरा कितना बड़ा इल्म है। बोल गुसल में कितनी सुन्नत है और क्या क्या है? मुसलमानों ये बता नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। बता गुसल में कितनी सुन्नत है और क्या क्या है? जान गया जब तूने कह दिया कि ये जन्नती है, सर्टिफिकेट दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नती है। अगर वो जन्नती है तो तू साबित कर, मैं पहले ही जान गया। सुन, साबित कर, तू साबित कर अगर हलाली है तो। कौन? तू अगर हलाली है, हलाली नहीं है तो चलता है, हमारे में नहीं चलता है। मुसलमानों में पूरे जिम्मेदारी पूरे दावे के साथ बोलता हूँ, ये नहीं मालूम कि गुसल में कितनी सुन्नत है और क्या क्या है। ये बता भी नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ऑडियो खत्म हो जाएगी, कॉल भी कट जाएगा, मगर ये बता नहीं पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा दावा है। गुसल में कितनी सुन्नत है और क्या क्या है? मेरी बात सुन, गुसल में सुन्नतें कितनी है और क्या क्या है, पहले इसको वाज़ेह कर दे, उसके बाद कोई बात नहीं बढ़ा रहा है। देखो मुसलमान, और ये खुद बोला कि मैं किसी की तकलीद नहीं करता हूँ, और ये चारों इमामों में से किसी को नहीं मानता। ये ऐसे शैतान होते हैं, ये गैर मुकल्लिद वहाबड़ा है, ये शैतान है, समझे? इसीलिए मैं इन शैतानों से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े हरामी होते हैं। क्योंकि ये वहाबी जो है ये अपने मामू नाना की औलाद है, समझे? ये अपने बाप की औलाद नहीं होती। फोन किया, इनकी माएँ इनके घर से लेके आती हैं इनको, हदीस दहेज में सजा के लेकर। पहले कभी हदीस की शक्ल देखी है कि नहीं देखी है? तो तू बता ना। चल ये बता। अच्छा तू ये बता, तू बता गुसल में सुन्नतें कितनी हैं और क्या क्या है? बुनियादी चीजें हैं, गुसल में बुनियादी चीजें हैं। अच्छा, मेन अकाइद पे आ, पहले एक मुद्दे पे आ, जिससे बात कर रहा जन्नत, पहले जन्नती की गारंटी दे दी। पहले गुसल में फर्ज कितने हैं? मुसलमानों कयामत आ जाएगी, ये बता नहीं पाएगा कि गुसल में सुन्नतें कितनी है और क्या क्या है। जाहिल आदमी पहले गुसल का फर्ज बता दे। देखो ये कितना बड़ा गुसल पे, फिर आ जाएगा वजू पे, आ जाएगा फिर नमाज पे, आ जाएगा। ये एक मौजू पे बात कर। सुन, इस वहाबड़े की जिहालत दिखा रहा हूँ, ये इतना बड़ा शैतान है। अबे सुन मेरी बात, एक सुन ले, ये मेरी एक बात सुन ले। ये जो वो औरत है जो अभी हमारे मेरी बात तौहीन की है जिसने, उसने भी इसके बाप जाकिर नालायक का हवाला दिया है। मुझे पता है रसूल है, गुस्ताखे सुने गए कि नहीं? गुस्ताखे औलिया है, गुस्ताखे मोमिनीन है। ये इतने बड़े हरामी हैं, ये सुन नहीं सकता है। मेरा दावा है कि तू कयामत तक नहीं बता पाएगा कि गुसल में कितनी सुन्नत है और क्या क्या है। गला खराब हो जाएगा। तू मुवाहिद है, मुजतहिद है, बता गुसल में कितनी सुन्नत है और क्या क्या है, बता। तेरा गला खराब हो जाएगा। मुसलमानों मेरा दावा है कि ये बता नहीं सकता है, इसको मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये गैर मुकल्लिद है। तूने गारंटी दे दी कि फला जन्नत दावा है, मेरा दावा है, तुझ पर दावा है कि तू नहीं बता सकता कि गुसल में कितनी सुन्नत है और क्या क्या है। कुरान और हदीस से साबित कर के गुसल में कितनी सुन्नत है। अबे सुन ले, मुसलमानों जिसको ये ना पता हो कि गुसल का तरीका क्या है, गुसल किस तरह से किया जाएगा, गुसल में सुन्नतें कितनी है, गुसल में फर्ज कितने हैं और क्या क्या है, तो उसका क्या गुसल क्या होगा? जब जिसको गुसल का तरीका नहीं मालूम है, साला वो पाक क्या होगा? तो जब नापाक है तो इसको साले को मुसलमान कहलाने का हक कौन सा मिलता है? सबसे पहला इमामों पर तनकीद करने के लिए नाजायज औलाद। तेरा सवाल 4 इमाम पे। अबे नज़्द की नाजायज औलाद, मुझे तू पहले ये बता दे कि गुसल में कितनी सुन्नतें हैं और क्या क्या है, बस तू खजालत मिटाएगा। मुसलमानों में यही दिखा रहा हूँ, मैंने बोला था
कि कॉल भी कट सकता है, कॉल भी कट जाएगा, मगर ये नहीं बता पाएगा कि गुस्ल में कितनी सुन्नत है और क्या क्या है। चल किताब देख के बता दे, किताब देख के बता। अबे नस्ब की नाजायज औलाद, किताब देख के बता दे हवड़े। नहीं तो शैतान 2 मिनट में आ रहा हूँ। गैर मुक़ल्लिद हरामी वाला तू जिना बता जा कहाँ रहा है। अरे गाली पहले पूरी दे रहे तो बात करो। जा क्यों रहा है बताना हरामखोर। अबे गाली पहले पूरी दे रहे तो मैं बात करूँ कुरान और सुन्नत पे ना। नस्ब की नाजायज औलाद बताना। अबे पहले और गाली में कितना सुन्नत है, पहले और गाली दे ले। चल सुन्नत कितनी है तू बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया कि तू नहीं बता पाएगा। फिर मेरी बात जब सुनना हो तो एक नंबर का हरामी है। पहले तू जितनी गाली देना हो दे ले, उसके बाद जब तू ठंडा हो जाएगा मैंने तुझे बताया कि तू नहीं बता पाएगा कि गुस्ल में कितनी सुन्नत है और क्या क्या है। मेरा यही जो है तुझसे सवाल रहेगा, क्योंकि मैं तुझे समझ गया तू कितना बड़ा शैतान है और कितना बड़ा जाहिल है। जाहिल इब्न अबू जहल उतबा और शैबा की नापाक औलाद बंद हो गया। बता ही नहीं सका कि गुस्ल में कितनी सुन्नत है और क्या क्या है। ये मेरा दावा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जर्मन सेफर्ड है तू ये बता। तो बोल दे कि कितनी सुन्नत है, बोल और क्या क्या है। पागल सुन, नहीं बताएगा मुसलमानों, ये मेरा वादा है। सुन इन जाहिलों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसलिए मैं इन हरामियों से बात भी नहीं करता हूँ। अबे सुन, मैं तो नहीं बता पाएगा, मेरा वादा है, मेरा वादा है, तू नहीं बता पाएगा। गाली वाली दिया जाए नहीं बता पाएगा, मेरा दावा है। अबे बेवकूफ आदमी ये अगर तुझे मालूम है तो बता। तुझे मालूम ही नहीं है कि गुस्ल में कितनी सुन्नत है और क्या क्या है, मालूम ही नहीं है तुझे। गुस्ल पे ऐसे क्या हुआ है, अभी बात तू कर रहा था 4 आई। अबे पहले पाकी का तो पता चले कि तू पाकी किस तरह हासिल करता है। जो नापाक कहता हो पहले वो हमसे बात कब कर सकता है। अबे नापाक इंसान, गंदे अकीदे के गंदे नुस्खे बता। तुझे किसने नंबर दिया? नाजायज वाला तू बताना कि गुस्ल में कितनी सुन्नत है और क्या क्या है। गाली देगा उतना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने गाली कब की तुझे हरामखोर, मैंने गाली कब की है, मैंने कब गाली की है यार। और गाली अबे यार हकीकत मुझे हकीकत में बोल देना, ये कौन सी बुराई है यार। क्यों रे ना गाली दे। अरे वलीद इब्न मुगीरा को कुरान ने हरामी कहा है, अगर मैं तुझे हरामी बोल दूं तो इसमें कौन सी गलत बात है रे। अबे अरे बेवकूफ, अरे मैं तुझे अगर हरामी बोल दूं तो इसमें कौन सी गलत बात है। तेरे पापा को भी कुरान ने हरामी कहा है, वलीद इब्न मुगीरा को हरामी कहा है ना। अच्छा ये तेरा बाप जो वलीद इब्न मुगीरा था उसे हरामी कहा है ना। चाहता कि नहीं कि भौंकना ही चाहता है, ये बता। तू मेरे सवाल का जवाब देगा कि नहीं ये बता पहले। सवाल तो तेरा यही था ना। बता गुस्ल में कितनी सुन्नत है और क्या क्या है। अबे 4 अइम्मा पे आया था ना। अरे जाहिल कहीं के, जब तूने मानता ही मुझे ये बता कि गुस्ल में सुन्नत कितनी है और क्या क्या है, ये बता मुझे। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इमाम हैं, जो ठीक है इमाम है। तो हुजूर ने गुस्ल का भी तरीका बताया होगा, गुस्ल की सुन्नतें भी तो बताई होंगी। जाहिल कहीं के। सुन, तूने जन्नती का जो सर्टिफिकेट दे दिया ना। देख रहे हैं मुसलमानों, देखिए ये 4 अइम्मा को, 4 इमामों को माशाअल्लाह ये कहता है कि वो मुजर्रदी नहीं है। बताइए ये है इतने बड़े हरामी शैतान कहीं के, ये इब्न तैमिया की नापाक औलाद। समझे मुसलमानों, ये है इब्न तैमिया की नापाक औलाद हो, इब्न तैमिया की औलाद। बता गुस्ल में फर्ज कितने हैं और कितनी सुन्नत है और क्या क्या है, बता जवाब दे। जितना ज्यादा देगा मुझे अजर अल्लाह। तेरे पास जवाब नहीं है। ठीक है, अगर तुझे इल्म होता कि कितनी सुन्नत हैं और कितने फर्ज हैं और क्या क्या है तो जवाब देना। क्या है तू रॉड व्हीलर है? मुसलमानों ने शुरू में ही कहा था तो इतना बड़ा मुजाहिद है, ये इतना बड़ा मुजतहिद है, इसको ये भी नहीं मालूम। अबे मुझे सुना जनाब हजरात, आपने ये कॉल काट के भागा, बोला मेरे पास टाइम नहीं है। इसके पास मुजोरी करने तो बहुत टाइम था, बहुत वक्त था, पर मैंने इससे पूछा कि बता गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं, कितनी सुन्नतें हैं और क्या क्या हैं, तो बस इसकी नानी मर गई। इसको ये नहीं मालूम कि गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं और कितने फ़र्ज़ हैं और क्या क्या हैं। समझे मुसलमानों, ये इतने बड़े मुजतहिद हैं, ये तकलीद का इनकार करते हैं। हमसे कहता है ये शैतान कि तुम तकलीद क्यों करते हो, बताइए। और इसने क्या बोलूँ मैं यार, गुस्सा आ जाता है मुझे। मैं बहुत सोचता हूँ कि मैं इनको कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। हर बार सोचता हूँ कि मैं बहुत प्यार से बात करूँगा, मगर जब इन शैतानों की शैतानियत
مطلب اجاگر ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ بول ہی دیتا ہوں. کنٹرول کرنے کے باوجود میں ان کو الٹا سیدھا بول دیتا ہوں. بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو کچھ بھی نہیں کہوں گا, پیار محبت سے ہنسی کے ساتھ بات کروں گا, مگر جب ان کی شیطانیت منظر عام پر آتی ہے اور یہ پاگل پن کے دورے جب ان کے اوپر پڑنے لگتے ہیں, یہ بڑبڑانے کے بعد بس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو بھی فلاں بات نہیں کر پایا. اور حقیقت بات ہے, جو بڑبڑاتا ہے, جو بات کرنے کا ڈھنگ سلیقہ نہیں رکھتا, تو میں بھی اس سے بات نہیں کرنا پسند کرتا ہوں. بہرحال جو طریقے کے ساتھ بات کرتا ہے, جو ادب و احترام کے دائرے میں رہ کے بات کرتا ہے, میں اس سے بات کرنا پسند کرتا ہوں. میں اس لیے بدتمیز والوں سے بات نہیں کرنا پسند کرتا کیونکہ میں بھی خود بہت بڑا بدتمیز ہوں. میں کوئی شریف آدمی نہیں ہوں اتنا بڑا کہ صاحب میں کوئی مولانا ہوں, کوئی عالم ہوں. میں تو ان شیطانوں کی شیطانیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس میدان میں آیا ہوں, اس فیلڈ میں آیا ہوں, کیونکہ میں ان شیطانوں سے ہی نکلا ہوں. میں ان شیطانوں کی شیطانیت کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے شیطان ہیں. یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں, یہ اللہ کے ولیوں کے دشمن ہیں, یہ مومنوں کے بھی دشمن ہیں. سمجھے مسلمانوں, یہ ہم ایمان والوں کا ایمان چھیننے نکلے ہیں, یہ ہم مسلمانوں کا ایمان لوٹنے نکلے ہیں. تو یہ جال پھیلاتے ہیں. سمجھے مسلمانوں, بڑے بھولے بن کے آپ کے سامنے آئیں گے, بڑے سیدھے بن کے آپ کے سامنے آئیں گے, بڑے متقی اور پرہیزگار بن کے آپ کے سامنے آئیں گے, اور آپ کا ایمان ایسے لوٹ لیں گے آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی. سمجھے مسلمانوں. تو میں ان شیطانوں کی شیطانیت کو بہت قریب سے, بہت اچھے سے, بہت گہرائی کے ساتھ جانتا ہوں. تو اس لیے میں ان لوگوں سے بات کر کے ان کی شیطانیت منظر عام پر لانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ لوگ جب بڑبڑان, اچھا ایک بات اور دیکھی ہوگی, یہ سوال کرتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں, اور ہم کوئی سوال کرتے ہیں تو یہ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے. اسی لیے مجھے غصہ آنے لگتا ہے, پھر میں ان کو الٹا سیدھا بھی بول دیتا ہوں. سمجھے بھائی, یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہم جو ہے جواب دیتے رہیں اور وہ جواب نہ دے. کیا یہ ضروری ہے کہ وہ جو سوال کرے گا ہم اس کا جواب دیں گے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کا اصول ہے؟ صرف ہم جواب دیں وہ جواب نہ دے, یہ تو کوئی اصول نہیں ہے. بھائی بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک سوال سامنے والا کرتا ہے تو ایک سوال کرنے کا ہمارا بھی حق ہے. جو سوال ہم کریں پھر ہم کو بھی اس کا جواب ملنا چاہیے. جب جواب نہیں ملتا تو پھر یار, انسان ہوں میں بھی, تو میں بھی بھڑک جاتا ہوں, مجھے بھی غصہ آتا ہے, میں بھی کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بول دیتا ہوں. مگر ان کے جتنے علماء سے میری بات ہوئی ہے الحمدللہ, پیار محبت سے میری بات ہوئی ہے, سلیقے کے ساتھ بات ہوئی ہے, مگر یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. ان کے جاہل بھی بدتمیزی کرنے لگتے ہیں, ان کے عالم بھی بدتمیزی کرنے لگتے ہیں. یار میں بھی کہاں تک برداشت کروں گا, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مجھ سے بھی الٹا سیدھا ہو جاتا ہے. میں بھی غصہ کر جاتا ہوں, میں بھی ان کو الٹا سیدھا بول دیتا ہوں. اور میں تو ان چلے کے پلوں کو بولتا ہی ہوں. میں بتاؤں میں کیوں بول دیتا ہوں؟ کیونکہ ان حرامیوں کو حرامی کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے, کیونکہ ان کے باپ بھائی ولید بن مغیرہ کو قرآن نے حرامی کہا ہے. ہم تو قرآن حدیث والے ہیں. بہرحال ان کا باپ وحید الزماں حیدرآبادی اپنی کتاب نزول الابرار میں ان کی حقیقت کو دکھا گیا ہے, بتا گیا ہے. یہ وہابی دیوبندی اپنی ماں بہن بیٹی سے زنا کو جائز بتاتے ہیں. ان کی کتاب میں لکھا ہے نزول الابرار میں. وہابی و دیوبندی, یہ جو لوگ وہابی بن جاتے ہیں نا, شاید یہی مجھے لگتا ہے کہ یہی آسان طریقہ ان کو لگا ہوگا. خیر میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, ورنہ میں بہت کچھ بول دوں گا تو کچھ لوگ شاید ناگوار جو ہے ان کے چہرے پہ ناگواری کے آثار نظر آئیں گے. کچھ اپنے بھی ہوتے ہیں اور کچھ پرائے بھی ہوتے ہیں. تو پرایوں کا تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, مگر اپنے ان لوگوں کا مجھے وہ رہتا ہے کہ اپنے لوگ ہو کے نہیں سمجھ پاتے. تو میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ صلح کلیت کا چولا اتار دو, ٹھیک ہے. صلح کلیت کے چہرے والے کو, صلح کلیت کے چولے والوں کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دو رنگی مت چال چل, دو رنگی چال مت چل, ایک ہی چال چل. اور وہی چال چل جو غوث اعظم نے راستہ بتایا, جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے راستہ بتایا, جو صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے راستہ بتایا, اور اس وقت میں اس دور میں جو میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے راستہ بتایا, حضور مفتی اعظم ہند حضور مصطفیٰ رضا صاحب, حضور اختر رضا صاحب قبلہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو راستہ بتایا, اسی پہ چلو نا یار.
ان شیطانوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کہنے کو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، بہرحال سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔